চলো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য নতুন আবার সে ভাইরাল নিউজ। আমি টোটাল অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনায় কোনায় নিউজগুলো নিয়ে আসি তোমাদের জন্য। চলো আগে নিউজটা দেখে নি করে একদম। রাহুলের মতে মুম্বাইয়ের সম্পদকে টার্গেট করেছে আদানি, আর আদানিকে এই সম্পদ আহরণের ব্যাপারে পুরো সরকারি মেশিনারি দিয়ে সাহায্য করছে বিজেপি সরকার। রাহুল বলেন, মুম্বাইয়ের ধারাভি পুনর্গঠন প্রকল্পের মতো বিরাট প্রজেক্ট দিয়ে প্রজেক্টটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র একজনকে। রাহুল গান্ধী বলেন, ধারাভি পুনর্গঠন প্রকল্প সঠিক নয়, কারণ একটা শুধুমাত্র একজনকে লাভবান করবে এটা। তাছাড়া এই প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়েও আমার সন্দেহ রয়েছে। শুধুমাত্র একজনের হাতেই দেশের সব বন্দর, এয়ারপোর্ট এবং সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। রাহুল গান্ধীর মুখে শোনা গিয়েছে শিবসেনা, ইউটিবি নেতা উদ্ধব ঠাকরের কথা। রাহুল বলেন, মহারাষ্ট্রের ভোটে যদি বিরোধী মহাবিকাশ আঘাডি জোট ক্ষমতায় আসে, তাহলে এই বিতর্কিত ধারাবি পুনর্গঠন প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল করা হবে। এছাড়াও মহারাষ্ট্র থেকে বড় বড় প্রজেক্ট গুজরাটে পাঠিয়ে দেওয়ার নেপথ্যে একনাথ শিন্ডে সরকারকেই দায়ী করেছেন রাহুল। রাহুলের মতে মহারাষ্ট্রের আর্থিক পরিকাঠামো দুর্বল করে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে। ফক্সকন এয়ারবাসের মতো বড় বড় 7 লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প মহারাষ্ট্র। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো এবং শিক্ষামূলক ভিডিও। এই সমস্ত ভিডিও থেকে কিন্তু আমরা শিক্ষা পাই যে আমরা কাকে ভোট দেবো, কাকে ভোট দেব না, কোন পলিটিক্যাল পার্টিকে নিয়ে আসলে আমাদের রাজ্যের ভালো হবে, আমাদের সাধারণ মানুষের ভালো হবে, এটা তো আমরা চাই। তো আবার আপনারা ভিডিওটা দেখুন মন দিয়ে। রাহুল বলেন, এর ফলে 5 লক্ষ টাকার চাকরি মুম্বাই থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাহুল আরও বলেন, এই নির্বাচন মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতি এবং মহারাষ্ট্রের আম জনতার নীতির লড়াই। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতা এলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থ প্রাধান্য পাবে বলেও জানান রাহুল গান্ধী। এবার আপনাদের শোনাবো কি বলেছেন कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। विकास नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। हाँ, रीडेवलपमेंट। हाँ, तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं किया जाएगा? 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे, फिर एक बार शुरू होके और लेट। देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है। यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out. And we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land. And it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है। बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है, यही मुद्दा है।
कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा, और टोटल इसकी जो वैल्यू है महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रश प्रोजेक्ट, 6000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता। 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। बर्ट ड्रग पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। टोटल 5 लाख युवाओं के जो जॉब्स हैं वो आपसे छीने गए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। मोदी जी सामने बोल रहे हैं